Yes. I think we all have joined. First, we will discuss regarding questions. Okay. Can anyone tell how many students have joined? Write in the chat box. Okay. 50 plus. Okay. 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 Girija Prasad tells 54. Let's first write down important questions. Important questions. First, write down theory questions. First, I will tell theory question. Next, we will discuss practical or problem-based questions. First, write down theory questions. Question number 1. What is financial management? What is financial management? Discuss its meaning, nature, and scope. Discuss its meaning, nature, and scope. Question number 1 over. What is financial management? Discuss its meaning, nature, and scope. Next, question number 2. Compare and contrast. Compare and contrast between profit maximization. Compare and contrast between profit maximization and wealth maximization. Objective of financial management. Compare and contrast between profit maximization and wealth maximization. Objective of financial management. Next. Question number 3. Discuss different functions of financial management. Discuss different functions of financial management or
elaborate various or functions of financial management जोटा ता और रे अछि से क्वेश्चन रो एक दीटा क्वेश्चन एक आंसर हो और elaborate various important decisions taken by finance manager. Elaborate various important decisions taken by finance manager. Question number 4. Define capital budgeting. Define capital budgeting. What is its importance? Define capital budgeting. What is its importance? Elaborate different tools of capital budgeting. Tools and techniques of capital budgeting. Next लिखंतु. What is cost of capital? What is cost of capital? सेथिर लिखंतु what is its importance? Discuss the process of calculating weighted average cost of capital within bracket WACC. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखंतु. Define leverage. Discuss the concept of operating leverage, financial leverage, and combined leverage. Operating leverage, financial leverage, and combined leverage. तापर क्वेश्चन लिखंतु. What is capital structure? Explain important theories of capital structure. How capital structure is determined in practice. तापर लिखंतु. Define dividend. Elaborate different forms of dividend. Define dividend. Elaborate different forms of dividend. Explain various types of dividend policies practiced by corporates. तापर लिखंतु. What is working capital? What are its types? Elaborate
different sources of financing working capital. তারপর লিখুন discuss different tools and techniques of inventory management. Next, লিখুন discuss different tools and techniques of receivable management. তারপর লিখুন discuss different tools and techniques of cash management. তারপর লিখুন प्रॉब्लम। कोई बोल रहा है सर लास्ट दो क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। डिस्कस डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। और लास्ट है डिस्कस डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। ओके, सब हो गया। थ्योरी ओवर। हाउ मेनी क्वेश्चंस? कितना क्वेश्चन हुआ? इस थर्ड में तो देखकर नहीं बोल रहा हूं, मैं से बुला रहा हूं। लास्ट तो पढ़ाया था ना, डिस्कस डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। 12 क्वेश्चन। ओके, दीज आर थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस। अभी हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और प्रॉब्लम क्वेश्चंस। प्रॉब्लम लिखिए, प्रॉब्लम फर्स्ट कैपिटल बजटिंग, एनपीवी, आईआरआर, पीआई, वो सब है। एनपीवी, आईआरआर, पीआई, पेबैक, एनपीवी, आईआरआर, पीआई, पेबैक, एआरआर, these are capital budgeting questions. Second, EBIT hyphen EPS analysis। अरे प्रॉब्लम किया था EBIT EPS एनालिसिस का। EBIT EPS एनालिसिस। थर्ड, लिवरेज एनालिसिस। फोर्थ, WACC calculation। WACC calculation, what is WACC? Weighted average cost of capital calculation। ब्रैकेट में लिखो बुक वैल्यू वेट कॉमा मार्केट वैल्यू वेट। लास्ट में लिखो वाल्टर, WALTER, वाल्टर एंड गॉर्डन, GORDON, गॉर्डन, मॉडल ऑफ डिविडेंड। ठीक है बेटा, हो गया शायद। आप अगर कोई लिख नहीं पाए तो दोस्त से पूछ लेना। वाल्टर, WALTER, वाल्टर, ठीक है, एंड गॉर्डन, GORDON। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे को पता नहीं, मैं तो बुला दिया हूं ना। मैं किसी को देखकर नहीं बुलाता, सिलेबस देखकर बुला रहा था।
क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा होगा मेरे को पता है? पता नहीं। वो लास्ट वाला प्रॉब्लम का लास्ट वाला है वाल्टर, WALTER, वाल्टर एंड गॉर्डन मॉडल ऑफ डिविडेंड। ओके, वाल्टर एंड गॉर्डन मॉडल ऑफ डिविडेंड। ठीक है, थैंक यू। अभी हम शुरू करते हैं। कल जो बात किया था IRR के ऊपर, हम बात किए थे कल IRR के ऊपर। व्हाट इज IRR? IRR मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR is compared with cost of capital of the business, and then decision is taken whether to accept the project or reject the project. In our last class, I have told that IRR can be easily calculated with MS Excel by a computer. In the MS Excel, you have to go to function, and there you have to go to financial function. There is IRR calculation. You have to provide the inputs of inflow and outflow, and you will get IRR in just click of a mouse. But in exam situation, how IRR will be calculated? In exam situation, IRR will be calculated with trial and error. What is trial and error method? कैसे कैलकुलेट होता है IRR? अभी हम बात करेंगे। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? एग्जाम्पल है द कैश आउटफ्लो ऑफ ए प्रोजेक्ट इज 50,000। एक प्रोजेक्ट का कैश आउटफ्लो कितना है? 50,000। द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 3 years। कैश आउटफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट इज 50,000, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 3 years। उसका लाइफ 3 साल है। द कैश इनफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट आर year 1 20,000, year 2 25,000, year 3 20,000। 3 कैश इनफ्लो है। Cash outflow of the project is 50,000. Life of the project is 3 years. Cash inflow of the project is given year 1 20, year 2 25, year 3 20. Calculate IRR of the project. How to calculate? Compute IRR of the project. जब भी हमको IRR निकालना होता है, मैं बताया था IRR एक इमेजिनरी डिस्काउंट रेट। जिस डिस्काउंट रेट पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो जितना आता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो उतना आता है, उस डिस्काउंट रेट को बोलते हैं IRR। लेकिन हमको डिस्काउंट रेट पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सपोज एक डिस्काउंट रेट जैसे बचपन में करते थे ना, लेट्स अज्यूम द डिस्काउंट रेट इज 10% and we will try this problem. If NPV is 0, then that is our IRR. If NPV is not 0, we will go for another trial. Okay, suppose you start the trial with 10%. Let the discount rate is 10%. तुम बोलोगे सर 20% मैं नहीं लूंगा, 15% लूंगा, ले सकते हो? You can start the trial. So first we have to trial at 10%. Year 1 2 3, year 1 2 3 cash flow are given 20,000, 25, 20,000. These are the cash flow. We have taken discount rate 10%. We have to calculate PVIF at 10%. How to PVIF is calculated? 1 divided by 1 point discount rate. Discount rate कितना है? 10। आ गया 0.090। फिर सेकेंड का 25,000 में था, उसमें क्या कैसे PVIF निकालेंगे? 0.909 डिवाइड बाई 1.10, दैट इज इक्वल टू 0.826। थर्ड ईयर का कैसे निकालेंगे? 0.826 डिवाइड बाई 1.10, that is equal to 0.751. So you calculate PVIF in this way. So you have cash flow, PVIF. What you will do next? You will multiply cash flow with PVIF. Cash flow into PVIF. Cash flow है 20,000, PVIF है 0.909। 20,000 into 0.909 आया 18,180। सेकेंड 25,000 कैश फ्लो है, ये है 0.826।
आया 20,650। थर्ड का 20,000 इंटू 0.751 आपका आया 15,020। If you will add these three, you will get present value of cash inflow. What is present value of cash inflow? 53,850. You add 18,180, 2650, 1520. It is coming 53,850. From present value of cash inflow, you have to deduct present value of cash outflow. The question tells that the present value of cash outflow is 50,000. 53,850 minus 50, it is coming net present value 3850. The NPV is 3850 if the discount rate is 10%. NPV जीरो आया क्या? जीरो नहीं आया सर, पॉजिटिव आया। तो ये कभी भी IRR नहीं हो सकता है। 10% is not IRR because 10 IRR is a discount rate at which NPV is zero. तो एनपीवी यहां पर पॉजिटिव आया 3,850। ये एनपीवी को हमको जीरो तक लाना है, मतलब इस एनपीवी को कम करना है। अगर एनपीवी को कम करना है, हमको डिस्काउंट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब डिस्काउंट रेट हम 10% लिए थे, अभी इसको कम करेंगे तो इसको डिस्काउंट रेट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। डिस्काउंट रेट कितना बढ़ाएंगे? जितना तुम्हारा मर्जी, थोड़ा बढ़ा ले। जो फास्ट में 10% लिए थे, अभी सपोज डिस्काउंट रेट इज 20% या ले लेंगे, लेट्स डिस्काउंट रेट इज 20%। फिर 20% में वही काम करेंगे जैसे 10% में किए थे। क्या क्या है? ईयर 1 2 3, कैश फ्लो 20,000, 25, 20,000। फिर हम डिस्काउंट करेंगे, पीवीआईएफ निकालेंगे। डिस्काउंट रेट 20% कैसे निकलेगा? 1 डिवाइड बाई 1 पॉइंट डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट कितना लिया अभी? सोचा, लेट डिस्काउंट रेट इज 20%, सो 0.20, दैट इज इक्वल टू 0.833। फिर नेक्स्ट ईयर आएगा 0.833 डिवाइड बाई 1.20, 0.694। थर्ड ईयर आएगा 0.694 डिवाइड बाई 1.20, 0.578। आपका तीनों साल का पीवीआईएफ आ गया। फिर क्या करेंगे? कैश फ्लो को पीवीआईएफ में मल्टीप्लाई करेंगे। 20,000 इंटू 0.833, 16,660। 25,000 into 0.694, 17,350। फिर 20,000 into 0.578, 11,560। आप अगर ये तीनों को ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आपका कितना आया? 45,570। उससे हमको क्या लेस करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना था? 50,000। तो कितना आ गया? एनपीवी -4430। अच्छा, एनपीवी क्या आए तो आईआरआर है, जीरो आए तो, लेकिन यहां पर क्या आ गया? -4430। तो ये भी एनपीवी, ये भी आईआरआर नहीं है। 10% आईआरआर नहीं है, लेकिन 20% भी आईआरआर नहीं है। लेकिन 10% और 20% में एक चीज कॉमन है, 10% में पॉजिटिव है, 20% में नेगेटिव है। हमको दो ऐसा रेट निकालना है, एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव। इसका मतलब हमको पता चल गया आईआरआर 10% से ज्यादा है, लेकिन 20% से कम है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? दो ऐसा रेट निकालना पड़ेगा जैसे में एक में पॉजिटिव आए और एक में नेगेटिव आए। जब तक पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मिलता है, हमको कैलकुलेट करना पड़ता जाएगा। लेकिन आप क्या कीजिए, पहला 10% ले लीजिए, दूसरा 20% ले लीजिए। इंडिया में लगभग आईआरआर उसके बीच में आता है। तो क्या होता है? एनपीवी आपका आ गया -4430। अगर 20 में नहीं हुआ, 20 में भी पॉजिटिव आया तो 30 ले लेते। ठीक है। तो एनपीवी 10 और 20 के बीच में, लेकिन कितना है उसको निकालना इंपॉर्टेंट है। उसको निकालने के लिए हमको फिगर देखना पड़ेगा। हमको पता है देयर आर टू रेट्स,
एक है लोअर रेट, एक है हायर रेट। लोअर रेट 10% और हायर रेट 20%, इन दोनों के बीच में आईआरआर है। हमको पता है 10% में एनपीवी आया 3850, 20% में एनपीवी आया -4430, 20% में आया -4430, 10% में आया 3850, 20% में आया -4430। आईआरआर में एनपीवी कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन ये आईआरआर रेट कितना है कैलकुलेट करना है। ये आईआरआर रेट कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को याद कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? आईआरआर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? आईआरआर इज इक्वल टू, फॉर्मूला है लोअर रेट, फॉर्मूला है लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर डिवाइड बाय एनपीवी लोअर माइनस एनपीवी हायर इनटू डिफरेंस ऑफ रेट। मैं समझाता हूं क्या है फॉर्मूला। लोअर रेट, इन 10 और 20 में से लो कौन सा है सर? 10 है, तो 10 प्लस एनपीवी एट लोअर, एनपीवी एट लोअर मतलब 10 के टाइप पर एनपीवी कितना है? 10 के टाइम पर एनपीवी है 3850, डिवाइड बाय एनपीवी लोअर, लोअर मतलब 10 के टाइम में एनपीवी कितना है? 3850 माइनस एनपीवी हायर, एनपीवी हायर कितना है? -4, हायर है 20%, उसमें है -4430। यहां पर लड़का गलती कर देता है, 4430 ले लेता है, ये -4430 इनटू डिफरेंस ऑफ रेट। डिफरेंस ऑफ रेट क्या है? एक रेट है 20, एक रेट है 10, हायर रेट माइनस लोअर रेट इज द डिफरेंस ऑफ रेट, 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेट। अभी इसको सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 3850, 3850 डिवाइड बाई, अभी देखो 3850 माइनस, यहां पर भी माइनस, ब्रैकेट के बाद में माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये 3850 प्लस 4430, तो मिलाने से आ जाता है 8280। तो आ गया आपका 3850 बाई 8280 इंटू 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 है 10 इंटू 10। अभी इसको सॉल्व करने से आता है 10 प्लस 4.65, इसका वैल्यू आता है 4.65, तो आपका आईआरआर आ गया 14.65। इसका मतलब इस प्रोजेक्ट का आईआरआर है 14.65। अगर हम डिस्काउंट रेट 14.65 लेकर इसको डिस्काउंट करेंगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो जितना आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो उतना आएगा, और एनपीवी 0 आएगा, वो वैल्यू 50,000 होगा। 14.65 में पीवी ऑफ इनफ्लो 50, पीवी ऑफ आउटफ्लो 50 और एनपीवी आएगा 0। अभी हमको पता चल गया इस प्रोजेक्ट का आईआरआर 14.65 है। अगर हमको पता है हम जो पैसा लोन पर लिए हैं उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा है, क्वेश्चन पूछ रहा है अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका है 13%, तो आईआरआर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो क्या करेंगे? आईआरआर ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो क्या करेंगे? प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे? ये जगह पर हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एनपीवी पॉजिटिव आएगा। इफ यू डिस्काउंट द प्रोजेक्ट एट एनी रेट बिलो आईआरआर रेट, एनपीवी विल बी पॉजिटिव। नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है केस 2, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 16%, तो क्या करेंगे? यहां पर आईआरआर इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो यहां पर क्या करेंगे? प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे? क्योंकि यहां पर इफ यू डिस्काउंट द प्रोजेक्ट एट एनी रेट एबव आईआरआर रेट, एनपीवी विल बी नेगेटिव। तो एनपीवी आईआरआर कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? क्या करेंगे? दो रेट निकालना है, एक एक रेट पर एनपीवी पॉजिटिव आए
और दूसरे रेट पर एनपीवी नेगेटिव आए, फिर फॉर्मूला डाल देना है, आईआरआर का वैल्यू निकल जाएगा। एक बार आईआरआर निकल गया, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कंपेयर कर देना। अगर आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें। अगर आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करें। एनी डाउट? मैं आपको अनम्यूट करता हूं, किसी को कुछ डाउट है तो पूछें, बाकी सर इसको क्रॉस चेक किया जाए क्या 14.65? आप कर सर सकते थोड़ा स्क्रीन को हेलो अपलोड कीजिए क्रॉस चेक सर। हैं स्क्रीन। हेलो सर सर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो ଆପଣ କହିଲେ 13% ସେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତାର ଆगे फाइंड आउट କରିହଉନି ତାର କଷ୍ଟ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲ। ସେଟା ନଥିବ, सर କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଫର୍ମୁଲା ଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନବାର ଅଛି ସାର୍ ଟିକେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଆମର କ୍ୟାଶ ଆଉଟଫ୍ଲୋ ଯୋଉ କହିଲେ ସାର୍ ହେଲୋ ସାର୍ ଆପଣ କ୍ୟାଶ ଆଉଟଫ୍ଲୋ କହିଲେ 50,000 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଲ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ୱିଦିନ 3 ଇୟର୍ସ ସାର୍ କ୍ୟାଶ ଇନଫ୍ଲୋ ସବୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସିନା ମାନେ କଷ୍ଟ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟା ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ଏଣ୍ଟାର ଫିଗର ପାଇଲା ପରେ ଜାଣିବା ଆମେ କଷ୍ଟ ଆମେ ଅଫ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଜାଣିବା କେମିତି କ୍ୟାପିଟାଲ କଷ୍ଟ ଆମର ଟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆପଣ କଷ୍ଟ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲ ଚାପ୍ଟର ହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କ୍ଲାସ କରିନାହାନ୍ତି କଷ୍ଟ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲ କେମିତି କଢାଯାଏ। ଆପଣ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଇଦର ଡେଟ୍ ରୁ ଆଣିଥିବେ ନହେଲେ ଇକ୍ୱିଟି ରୁ ଆଣିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଡେଟ୍ ର କଷ୍ଟ ଅଛି, ଇକ୍ୱିଟି ର କଷ୍ଟ ଅଛି, ଦିଟାଙ୍କର ୱେଟେଡ୍ ଆଭରେଜ କରିକି କଷ୍ଟ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲ କଢାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ବୁଝିଗଲି ସାର୍ ଆମର ଆପଣ କରିଥିଲି କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ କଥା ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟା ମାନେ କ୍ୟାଶ ଆଉଟଫ୍ଲୋ ଭିତରେ ତ ଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାହା ମାନେ କ୍ୟାଶ ଆଉଟଫ୍ଲୋ ଯେତେ ମାନେ 50,000 ନାହିଁ ତାର ଲେସ୍ ତା କମ ରହିବ କଷ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ରହିବ ତାହେଲେ। କଷ୍ଟ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଲଗଉଛ ତାପରେ କୋଉଠୁ ଆଣିଛ, ଆଇଦର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ ମନରୁ ଆଇଦର ଇକ୍ୱିଟି, ହଁ ଇକ୍ୱିଟି ନହେଲେ ଆମର ତାର କଷ୍ଟ ଡେଟ୍। କେତେ? ତା କଷ୍ଟ 15% କି 12% କି 14% ଗୋଟେ ବାହାରିଥିବ, ସେଇ 14% ଟା ହେଲା କଷ୍ଟ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲ। ତାର କଷ୍ଟଟା କେତେ? ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମନେକର ସବୁ 50,000 ଯାକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଛ, ତାହେଲେ କେତେରେ ଆଣିଛ? ମନେକର 13% ଲୋନରେ ଆଣିଛ, ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲ 13%। ନାଇଁ 16% ଲୋନରେ ଆଣିଛ, ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲ 16%। 16% ଟଙ୍କା ଆଣିଛ, ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ଆଇଆରଆର ବାହାରୁଛି 14%। କରିବା ଦରକାର? କରିବା କଥା ନୁହେଁ। 16% ଟଙ୍କା ଆଣିଛ, ଆଇଆରଆର ବାହାରୁଛି 20%, ମାନେ 16 ଲଗେଇକିରି 20 କମେଇବ, ତାହେଲେ କରିବା ଉଚିତ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଓକେ ସାର୍ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ ଟା ଉପରକୁ କରିବେ ଫର୍ମୁଲା ଟା screenshot। ତ ପୁରା ଏଇଟା ହଉନାହିଁ, ଥରେ ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ହଉନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋର୍ଡଟେ, ଏଇଟା ମାନେ ଇଏ ହଉଛି, କିଏ ନେଇଥିବ ପିଲା ତାଠୁ ନେଇଯିବ। ଏଇଟା ପିପିଟି ନୁହେଁ। सर एटा क्रॉस चेक करियो 14.65 रे ଘରେ कैलकुलेशन। କରନ୍ତୁ, ଘରେ କରନ୍ତୁ। ओके सर थैंक यू। सर ये व्हाइट बोर्ड में जो आप शेयर कर रहे हैं, इसको शेयर कर सकते हैं सर? व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं होता, इसको पीडीएफ करके शेयर नहीं हो पाएगा? ये नहीं होता है। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन डाला हूं वो क्वेश्चन आपको उसका आंसर इजीली मिल जाएगा, किसमें?
चैट जीपीटी में लगा दीजिए, नहीं तो किस में लगा दीजिए, डीप सीक में लगाइए, ग्रोक में लगाइए, कहीं पर लगाकर उसका आंसर निकाल दीजिए, पीडीएफ निकाल दीजिए, पढ़िए। ठीक है, सर वाल्टर मॉडल सर टे कही हबो कि सर ମୁଁ ସେଗୁଡା ପଢେଇବି। ଆଉ ଚାରିଟା ଯୋଉ ବାକି ରହିଲା ସେ ଚାରିଟାକୁ ମୁଁ ପଢେଇବି। ଆରେ ମା ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲା ଝିଅଟି ଏଇଟା ଆସିଯାଇଛି ଇଣ୍ଟୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ ରେଟ୍ ଲାଷ୍ଟଟା। सर आउ एबे क्लास नहीं जाके ऑफलाइन क्लास सर आउ ऑनलाइन क्लास नहीं सर ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ଚାରିଟାକୁ ପଢେଇବି। Yes sir, thank you ନେଇଗଲି। ବାକି ଯୋଉଗୁଡାକ ରହିଲା ସେଗୁଡାକ ପଢେଇବି ଇଏରେ। ସାର୍ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ରେ ପ୍ରୋବାବୁଲ ସାର୍ ଡେଟ୍ କେବେ ଆସିପାରିବ ସାର୍? ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ତମ ବିଭାଗର ହିଁ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୋର କମର୍ସର ଅଲଗା, ଆମର କ୍ଲାସ ଅଲଗା, ଇଏ ଅଲଗା। ମୁଁ କେବଳ ପାଠ ପଢଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ। ତମର ଓହୋ ये ठीक ହେଲା କି ସାରଙ୍କୁ ପଚାରିବ ହେଲା କେତେବେଳେ ओके କ୍ଲାସ ओके ହବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ओके ओके ଓକେ सर ସାର୍, थैंक यू ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଲିୟର ସାର୍ ହେଇଗଲା ସାର୍, ବହୁତ ସାର୍। ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ଯେତେବେଳେ ହବ ଆମେ ପୁଣି ତାର ବାକି ଯୋଉଗୁଡାକ ରହିଲା ଗୋଟେ ଯୋଡେ ସେଗୁଡା ସବୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ସାରିଦବା ହେଲା। थैंक यू सर। थैंक यू सर थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर यू सो मच सर। Thank you so Thank you much, so much, sir. sir. थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर। Thank you, sir. क्लास चला ओके ओके Your class is Thank very you. ଯିଏ effective. ଶୁଣନ୍ତୁ ଯିଏ ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସେୟାର ଯେହେତୁ क्वेश्चन ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଦି ତିନିଟା क्वेश्चन ବୋଧେ ରହି ଯାଇଛି मे बी क्वेश्चन ଆଉ ସବୁ ନହେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର କିଛି ଗ୍ରୁପ ଅଛି କି ଆମର କିଛି ଗ୍ରୁପ ଫର୍ମ ହେଇଛି କି ठीक ଅଛି क्वेश्चन शेयर ହେଇଯିବ ग्रुप रे शेयर कर दो हाँ हाँ ठीक ଅଛି ऑफिशियल ग्रुप रे शेयर करि पारे तो हाँ ऑफिशियल ग्रुप रे शेयर करि परिबो तो ऑफिशियल ग्रुप रे ना हम जो ग्रुप रे शेयर करते बोलते ସେଇଟା कम्युनिटी ग्रुप रे तो ହେଇ ପାରିବନି ବୋଧେ ଆମେ ଏଇ जो ग्रुप शेयर करते ସେଇଥିରେ ହେଇଯିବ हां कम्युनिटी ग्रुप शेयर करि परिबोनी कम्युनिटी रे ଆମେ ମାନେ କେହି ଛାଡି ପାରିବୁ ସେଟା ତ ଆମେ ମାନେ ବି କେହି ଛାଡି ପାରିବାନି ତ ସେଥିରେ मैडम भाई छारी ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ କଣ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ हाँ मैडम को दे दो मैडम को नंबर ही नहीं मैडम को नंबर ही नहीं हम पाखरे ମ୍ୟାଡାମ ବି ଛାଡିବେ ନାହିଁ ସେଗୁଡା ଗୋଟେ आगे କାମ କର, ତମ ମାନେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଅନଅଫିସିଆଲ ଗ୍ରୁପ କରିଦିଅ। हाँ सर ହେଇଛି ସେ ଗ୍ରୁପ ଟା सर ଅନଅଫିସିଆଲ ଗ୍ରୁପ ରେ ତମେ ଛଡା ଛଡି ହୁଅ ସେଗୁଡାକ सर जोड़े भाई छाड़ी चललेनी ग्रुप रे हेले अछि ठीक है हाँ समस्त अच्छे चेक कर दियंतु। କିଏ हाँ ठीक ଉଡିଥିବେ है ତା ପୂର୍ବରୁ डाउनलोड କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା କି। आगे ओके थैंक यू। भाई से जो अनऑफिशियल ग्रुप अछि प्लीज मत रे ऐड कर दियंतु। हां भाई ना भाई मते भी ऐड कर दियो वो भी नहीं बट ओके ओके थैंक यू मते भी ऐड कर दियंतु मो भी ऐड ही नहीं तो ମୁଁ ଜାଣିନି ଥିଲି ଏମିତି ଗ୍ରୁପ ହେଇଛି କହି। ଆରେ ପିଲେ ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା, ବନ୍ଦ କରିବା। सर हाँ हाँ थैंक यू सर थैंक यू सर